اب ناظرین ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہاں فیصلہ ملکی تاریخ کا یہ فیصلہ سنانے کے لیے ججز کمرہ عدالت میں پہنچ گئے ہیں اور سپریم کورٹ نے اسپیکر رولنگ کیس کا فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے۔ عدالتی تاریخ کا ایک اور اہم دن اس سے قبل ایک اہم دن تھا جس دن وزیر اعظم کے خلاف توہین عدالت کیس کا فیصلہ آنا تھا، جس کے بعد سپریم کورٹ کے مطابق وزیر اعظم کے عہدے کے اہل نہیں رہے تھے، تاہم وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کی جانب سے یہ معاملہ اسپیکر اور پارلیمنٹ کے حوالے کرنے کی بات ہوئی، جس کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے بھی وزیر اعظم کی نااہلی کا ریفرنس بھیجنے کا سوال ہی پیدا نہ ہونے کی بات کی گئی اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں اس حوالے سے جواب بھی جمع کروا دیا گیا کہ وزیر اعظم کسی طور بھی اس عہدے کے لیے نااہل نہیں ہیں۔ اس کے بعد جب مختلف حلقوں کی جانب سے جن میں خواجہ آصف اور عمران خان شامل ہیں ان کی جانب سے جب اسپیکر قومی اسمبلی کی رولنگ کو چیلنج کیا گیا تو سپریم کورٹ نے اس کیس کی سماعت کا آغاز کیا اور مختلف درخواستوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ قانونی نکات کے حوالے سے بھی بات ہوئی، اٹارنی جنرل عرفان قادر کو بھی طلب کیا گیا عدالتی معاونت کے لیے جنہیں اس کیس میں موجود ہونا چاہیے تھا، تاہم اس تمام تر کیس کی سماعت کے دوران ان کا رویہ قدرے جا رہا نہ رہا۔ وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کے وکیل اعتزاز احسن کی جانب سے بھی اول تو ان درخواستوں کے بیس لیس ہونے کے حوالے سے بات کی گئی کہ یہ درخواستیں ہی قابل سماعت نہیں ہیں کیونکہ ان سے انسانی حقوق متاثر نہیں ہوئے۔ اس کے علاوہ ان کی طرف سے یہ بھی بات کی گئی کہ ان کے موکل پر جو چارجز لگائے گئے ہیں وہ ہی ویلڈ نہیں ہیں۔ اب اس کیس کی سماعت جب آج مکمل ہوئی تو سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، 3 بجے کا وقت مقرر کیا گیا تھا۔ 3 بجے کے بعد سے ججز اپنے چیمبرز میں موجود تھے اور مشاورت کر رہے تھے اس فیصلے کے حوالے سے۔ اب وہ آ چکے ہیں یہ فیصلہ سنانے کے لیے کمرہ عدالت میں، جہاں موجود ہے وکلاء کی ایک بہت بڑی تعداد، اس کے علاوہ دیگر متعلقہ حکام جو کہ اس فیصلے کو سننے کے لیے کمرہ عدالت میں موجود ہیں اور انتظار کیا جا رہا ہے بے تابی سے کہ وزیر اعظم کے مستقبل کا فیصلہ کیا ہوتا ہے، آیا وہ وزیر اعظم کے عہدے کے اہل ہیں یا نہیں۔ اور اس پر چیف جسٹس کے جو واضح ریمارکس کل سامنے آئے تھے اور انہوں نے اعتزاز احسن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ کیا یہ 18 کروڑ عوام کے ساتھ زیادتی نہیں کہ ایک نااہل شخص کابینہ کے اجلاس کی صدارت بھی کر رہا ہے اور بجٹ بھی پیش کر رہا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کا کہ عدالت نے جو فیصلہ وزیر اعظم کی نااہلی کے حوالے سے سنایا تھا وہ حتمی فیصلہ تھا اور اس کے بعد وزیر اعظم کے عہدے کے اہل نہیں رہے یوسف رضا گیلانی۔ اب آج اس کیس کی جب سماعت مکمل ہوئی تو اسپیکر رولنگ کیس میں چیف جسٹس اب فیصلہ سنا رہے ہیں۔ 3 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا تھا اور اس بینچ کی سربراہی کر رہے تھے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری اور جو دیگر افراد اس وقت کمرہ عدالت میں موجود ہیں ان میں اٹارنی جنرل عرفان قادر بھی شامل ہیں اور اس کے علاوہ اعتزاز احسن بھی اور وہ تمام درخواست گزار اور ان کے وکیل جنہوں نے اس سلسلے میں درخواستیں دائر کرتے ہوئے اسپیکر کی رولنگ کو چیلنج کیا تھا۔ جی بالکل، اب سے کچھ دیر بعد اہم ترین فیصلہ ملک کی تاریخ کا سنا دیا جائے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسپیکر رولنگ کیس کا فیصلہ کچھ ہی دیر میں سپریم کورٹ کی جانب سے جاری کیا جائے گا اور ججز کمرہ عدالت میں آ چکے ہیں۔ ججز نے اسپیکر رولنگ کیس کے فیصلے پر دستخط کر دیے، یعنی اس فیصلے پر مہر ثبت کر دیا گیا اور چیف جسٹس نے یہ کہا ہے کہ اسپیکر کی رولنگ کو پارلیمانی تحفظ حاصل نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے قرار دے دیا ہے کہ اسپیکر کی رولنگ کو پارلیمانی تحفظ حاصل نہیں ہے، یعنی وزیر اعظم کی جانب سے جو یہ دعویٰ کیا گیا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے اور پارلیمنٹ کسی بھی فیصلے کو رد کرنے یا اسے قبول کرنے کا اختیار رکھتی ہے، تو چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے اسپیکر رولنگ کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ اسپیکر کی رولنگ کو پارلیمانی تحفظ حاصل نہیں ہے۔ گویا اسپیکر رولنگ کیس میں اس وقت فیصلے کا جو اہم نقطہ چیف جسٹس کی جانب سے قرار دیا گیا وہ یہ کہ پارلیمان اس بات سے قطعی تحفظ نہیں دے رہی۔ اور یہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلے ناظرین کہ سپریم کورٹ کی جانب سے وزیر اعظم کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے، یعنی اس کے بعد وزیر اعظم کہنے کا سوال بھی سوالیہ نشان جو ہے وہ بن چکا ہے اور اسپیکر کی رولنگ کو پارلیمانی تحفظ قرار حاصل نہیں ہے۔ اور 26 اپریل کو جو 7 رکنی بینچ نے وزیر اعظم کو مجرم قرار دیا تھا وہ فیصلہ حتمی ہے، یہی قرار دیا گیا چیف جسٹس کی جانب سے کل بھی اور یہی قرار دیا گیا ہے آج بھی۔ سپریم کورٹ میں اسپیکر رولنگ کیس کا فیصلہ سنانا شروع کر دیا، جس کا سب سے اہم نقطہ یہ کہ جو اسپیکر کی جانب سے رولنگ دی گئی ہے اس کو پارلیمانی تحفظ حاصل نہیں ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسپیکر رولنگ کیس میں سپریم کورٹ نے وزیر اعظم کو نااہل قرار دے دیا ہے۔ اسپیکر رولنگ کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، جس میں سپریم کورٹ نے وزیر اعظم گیلانی کو نااہل قرار دے دیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ججز نے اس فیصلے پر دستخط کر دیے اور چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ اسپیکر کی رولنگ کو پارلیمانی تحفظ حاصل نہیں ہے، جس کے بعد سپریم کورٹ نے وزیر اعظم کو نااہل قرار دے دیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسپیکر رولنگ کیس کی سماعت کے بعد فیصلے پر دستخط کر دیے گئے اور اب فیصلہ بھی سنا دیا گیا ہے اور چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ اسپیکر کی رولنگ کو پارلیمانی تحفظ حاصل نہیں اور عدالت نے سپریم کورٹ نے وزیر اعظم گیلانی کو نااہل قرار دے دیا ہے۔
हुकूमत के 4 साल मुकम्मल होने के बाद जो हुकूमती कश्ती एक अहम मोड़ पर और एक दोराहे पर खड़ी थी और हुकूमती अरकान की जानिब से इदारों के तसादुम को मुल्की मुस्तकबिल के लिए खतरनाक करार दिया जा रहा था, तो वहीं पर नाज़रीन ये एक अहम नुक्ता आया और अदालती फैसले में यह करार दिया गया है कि यूसुफ रजा गिलानी नाअहल हो चुके हैं। वज़ीर आज़म होने के हवाले से उनकी अहलियत पर जो सवालिया निशान सब था, अदलिया की जानिब से उसे दूर करते हुए ये कहा गया है कि अब यूसुफ रजा गिलानी वज़ीर आज़म के मनसब पर नहीं रह सकते, वो वज़ीर आज़म के मनसब के अहल नहीं रहे अदालती सज़ा के बाद, जिसमें उन्हें करार दिया गया था मुजरिम, और कोई भी मुजरिम वज़ारत उज़्मा के ओहदे का अहल नहीं हो सकता। स्पीकर रूलिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करार देते हुए उन्हें वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए बिल्कुल हतमी तौर पर नाअहल करार दे दिया है। स्पीकर रूलिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया और वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करार दे दिया है। आपको बताते चलेंगे सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर रूलिंग केस में अपना फैसला सुना दिया है और यूसुफ रजा गिलानी को वज़ारत उज़्मा के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। स्पीकर रूलिंग केस एक अहम केस था जिसका तारीखी फैसला सुनाया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और सुप्रीम कोर्ट ने यूसुफ रजा गिलानी को वज़ारत उज़्मा के लिए नाअहल करार दे दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी करार दिया है कि वज़ीर आज़म सईद यूसुफ रजा गिलानी 26 अप्रैल से नाअहल हैं और वज़ीर आज़म का मनसब खाली हो चुका है। आपको बताते चलें कि अदालत उज़्मा के मुताबिक यूसुफ रजा गिलानी 26 अप्रैल से नाअहल हैं और वज़ारत उज़्मा का मनसब तब से लेकर अब तक खाली है। आपको बताते चलें कि चीफ जस्टिस का कहना है कि स्पीकर की रूलिंग को पार्लिमानी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। जजिस ने फैसले के बाद फैसला सुना दिया स्पीकर रूलिंग केस का। हेलो, स्क्रीन पर बराह रास्त देखिए सुप्रीम कोर्ट के बाहर के मनाजिर। इस वक्त वकला की जानिब से नारेबाजी की जा रही है, गो गिलानी गो के नारे लगाए जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सराहा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस केस में समाअत के दौरान काफ़ी गर्मा गर्मी उस वक्त देखने में आई जब अटॉर्नी जनरल की जानिब से जारहाना रवैया अख्तियार किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंतहाई तहम्मुल के साथ सुना। तहम वहाँ मौजूद वकला उस रवैये के खिलाफ उठ खड़े हुए और उन्होंने भरपूर एहतजाज किया। अब आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर के मनाजिर देख सकते हैं, वकला बड़ी तादाद इस वक्त गो गिलानी गो का नारा लगा रही है, वो नारा जो कि अपोजिशन जमात मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी बुलंद किया गया और इसके बाद इस फैसले के हवाले से इसे चैलेंज करने की भी बात की गई। स्पीकर रूलिंग केस में आज दरखास्तों का जो फैसला सामने आया है, अब आप देख सकते हैं इस वक्त जजेस की जानिब से वज़ीर आज़म के मनसब को खाली करार दे दिया गया है और ये कहा गया है कि यूसुफ रजा गिलानी 26 अप्रैल से ही वज़ीर आज़म नहीं रहे जब से उन्हें मुजरिम करार दिया गया जजेस के उस बेंच की जानिब से जिन्होंने तौहीन अदालत केस का फैसला सुनाया। आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म गिलानी को नाअहल करार दे दिया गया है और इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं सीनियर वकील हामिद खान। आपको बताते चलें कि अदालत उज़्मा ने वज़ीर आज़म गिलानी को नाअहल करार दे दिया है और अदालत का कहना है कि 26 अप्रैल से यूसुफ रजा गिलानी नाअहल हैं और 26 अप्रैल से अब तक वज़ारत उज़्मा का मनसब खाली है। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और फैसला ये है कि यूसुफ रजा गिलानी को वज़ारत उज़्मा के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। अदालत का कहना है कि यूसुफ रजा गिलानी 26 अप्रैल से नाअहल हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि वो मेंबर पार्लियामेंट भी नहीं रहे और क्योंकि कोई भी शख्स जो कि मुजरिम करार दिया गया हो अदलिया की जानिब से, वो किसी भी ओहदे का अहल नहीं होता इंतज़ामी सतह पर। इलेक्शन कमीशन वज़ीर आज़म की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी करे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुख्तलिफ निकात मुख्तलिफ अहम निकात जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं, उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने यूसुफ रजा गिलानी को वज़ीर आज़म के मनसब के लिए नाअहल करार देते हुए ये करार दिया है कि वज़ीर आज़म का मनसब खाली हो चुका और ये खाली हुआ है 26 अप्रैल को आने वाले फैसले के बाद, जिसमें वज़ीर आज़म को मुजरिम करार दे दिया गया था। तहम वज़ीर आज़म ने यह मामला पार्लियामेंट को भिजवाने का फैसला किया और उसके बाद स्पीकर ने रूलिंग दी। स्पीकर रूलिंग केस में मुख्तलिफ दरखास्तें सामने आई जिनका फैसला अब सुना दिया गया है। हम अपने नुमाइंदा माजिद जलाल की जानिब चलेंगे, माजिद जलाल से जानेंगे कि इस केस में मजीद अहम रिमार्क सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्या दिए गए जो कि मुल्क के मुस्तकबिल पर बहुत हद तक असरअंदाज होंगे। जी माजिद। नाज़रीन, माजिद से हम बात करेंगे। इस वक्त आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर देख सकते हैं हामिद खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। 26/4/2012 को 7 जजेस के फैसले के नतीजे में डिस्क्वालीफाई हो गया है बतौर मेंबर पार्लियामेंट और उसी के हवाले से बतौर प्राइम मिनिस्टर के भी वो डिस्क्वालीफाई हो गया और इलेक्शन कमीशन को हदायत दी है कि आप फिल फौर
اسے 26/4/2012 سے ڈسکوالیفائڈ نوٹیفائی کریں اور پرائم منسٹر کا آفس 26/4/2012 سے خالی ہو چکا ہے اور صدر کو کہا ہے کہ آپ فی الفور مزید آئینی کارروائی کریں نئے وزیر اعظم کے لیے اور جو بھی اس کے لیے مناسب اقدامات پارلیمانی نظام کے مطابق اٹھانے ہوتے ہیں اس کے مطابق آئینی اقدامات کیے جائیں. سر اب 26 اپریل سے وزیر اعظم اب نہیں ہوں گے تو 26 اپریل سے لے کر آج تک جو انہوں نے اقدامات کیے تھے جو فیصلے کیے تھے ان کا کیا اسٹیٹس ہوگا؟ دیکھیے جب وہ وزیر اعظم ہی نہیں تھے تو پھر وہ فیصلے بھی غیر قانونی ہو گئے. تو 26/4 سے جو زبردستی اپنے آپ کو وزیر اعظم کہتے رہے ہیں انہوں نے اس ملک کے ساتھ اس ملک کے آئین کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ سبورشن آف کانسٹیٹیوشن تھی کہ کانوکٹ ہو کر اس نے اپنے آپ کو وزیر اعظم کہا, وزیر اعظم کے مراکز وزیر اعظم کے طور پہ فیصلے کیے اور اس کے نتیجے کو ملک میں ایک ابہام کی صورتحال اور ملک میں ایک غیر آئینی صورتحال پیدا رکھی. خان صاحب تھوڑی سی گل کر ایکسپرٹ آپ لا کے ایکسپرٹ ہیں یہ بتائیں اس فیصلے کے خلاف کیا یوسف رضا گیلانی کو اپیل کرنے کا کوئی حق نہیں آپ جانتے ہیں یہ اوریجنل جورسڈکشن میں فیصلہ ہوا ہے. ان کو جہاں حق تھا اپیل کا وہ انہوں نے خود نہیں کی. تو 7 رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف اپیل کا انہیں موقع اور اس میں قانون میں گنجائش تھی لیکن انہوں نے خود نہیں کی. لہذا وہ سزا جو ان کے خلاف 26/4 کو دی گئی تھی وہ حتمی ہو چکی ہے اور اسی کا نہیں قطعاً نہیں. اب سر میں تھوڑی سی بات یہ کرتا ہوں کہ آج ایک طرح سے رول آف لا کے جس کے لیے وکلاء کی فائٹ تھی احمد خان صاحب کی قیادت میں آج یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اس ملک کے اندر چاہے وزیر اعظم ہو چاہے چیف صاحب کا بیٹا ہو چاہے کوئی اور ہو قانون کی نظر میں سب برابر ہے. اور ہم وکلاء کا پہلے دن سے یہ موقف تھا کہ 26 اپریل کو وہ سات ججوں کے عدالتی فیصلے کے بعد غیر آئینی طور پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ غاصب ہے. یہ ہمارا شروع سے موقف تھا اور آج اس موقف کی تائید میں چیف صاحب کی سربراہی میں جو فیصلہ آیا ہے اس سے ہم وکلاء کا یہ جو شروع دن سے استدلال تھا اس کی آج تائید ہو گئی ہے. اور دوسری بات میں ایک جو واضح طور پر کرنا چاہتا ہوں کہ اس پوری پروسیڈنگز کے دوران جبکہ اٹارنی جنرل کا یہ رول تھا کہ وہ کورٹ کو اسسٹ کرتا تھا وہ باقاعدہ ایک فریق بن گیا تھا اور اس نے عدالت کی نہ صرف عدالت کے منہ پر توہین عدالت کی کوشش کی نازیبا الفاظ استعمال کیے اور اس کے خلاف ہم نے ایک پیٹیشن دائر کر دی ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی اور انشاءاللہ تعالی ہم وکلاء خان صاحب کی قیادت میں اس جدوجہد کو جاری و ساری رکھیں گے. اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہے پاکستان کی عدالتوں نے آزاد عدلیہ ہونے کا ثبوت دیا اور اس بات جو نظریہ ضرورت یہاں پہ نظریہ ضرورت جو سمجھا جا رہا تھا آج انہوں نے نظریہ ضرورت کو دفن کر دیا. نہیں اس میں دیکھیے عدالت نے تو قانون کے مطابق جو ریلیف بنتا ہے وہ دی ہے. کہا تھا کہ یہ میری دونوں آلٹرنیٹو پلیز ہیں فل فور ان کی ڈسکوالیفیکیشن اور منسٹریل ایکٹ ہوگا الیکشن کمیشن کا کہ اس کو نوٹیفائی الیکشن کمیشن کو باہر صورت اس میں انوالو کیا جائے گا نوٹیفائی الیکشن بینگ پرائم منسٹر انہوں نے کرنا ہے الیکشن کمیشن نے. میں سمجھتا ہوں کہ آج پرائم منسٹر نے جو فنکشن کیا ہے اور اس پر پبلک ایکسچیکر سے جتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں پرائم منسٹر از لائبل اسے مارلی اور لیگلی اس بات کا پابند ہے کہ پبلک ایکسچیکر سے جتنے اس نے پیسے خرچ کیے ہیں بیرون ملک دورے کیے ہیں
इस मुल्क में अंदर दौरे किए हैं, अपनी पार्टी को प्रमोट पर्सनल किया, प्रोजेक्शन वो और पार्टी सारे के प्रमोशन सारे पैसे वो अदा करें और पाकिस्तान के कौमी खजाने में वो दोबारा जमा कराए और इसके लिए साथ पाकिस्तान में वो पॉलिटिकल पार्टीज कि जो इस गैर आईनी कदम को आईनी करार देते रहे और इस प्राइम मिनिस्टर तस्लीम करते रहे, उन तमाम पर अखलाकी तौर पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो पूरी कौम से इस ऐलान की और इस हमायत पर कौम से माफ़ी मांगे। और आज कौम पूरी तरह बाशऊर है, वो इस बारे में विजिलेंट है कि इस मुल्क का निज़ाम सिर्फ और सिर्फ आइन और कानून के तहत चलना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने आज के फैसले में आज़ाद अदलिया का फैसला है। जी जी फैसला हो चुका है जी इस फैसले पर अमल दरामद हो चुका है और वो 26/4/2012 से वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, इसलिए इसका अमल दरामद का कोई सवाल नहीं है, वो अमल दरामद पहले से हो चुका ऐसा कोई ऑर्डिनेंस नहीं है, एक्स्ट्रा नेशनल असेंबली का मेंबर ही नहीं रहा। प्राइम मिनिस्टर सिर्फ वो हो सकता है जो नेशनल असेंबली का मेंबर हो। इसलिए खान साहब वो इस तरफ कह रहे हैं कहा गया है कि पार्लिमानी निज़ाम को आप बचाएं। सदर को कहा गया है कि आप पार्लिमानी निज़ाम पर अमल दरामद करते हुए आइन के तहत इक़दाम वो ले जो कि पार्लिमानी निज़ाम और आइन कहता है। Today a historic judgment of the Supreme Court has been given in which the court has given a verdict that on the announcement of the judgment of 7-member bench of the Supreme Court on the 26th of April 2012, Mr. Yusuf Raza Gilani became यही नाज़रीन एक ताज़ा खबर आप तक पहुंचाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस वक्त आईनी और कानूनी माहिरीन की गुफ्तगू तो जारी है मीडिया से, लेकिन एक ताज़ा खबर सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से वज़ीर आज़म की नाअहली ख़त्म करने के लिए ऑर्डिनेंस जारी करने पर गौर किया जा रहा है। एक और ताज़ा खबर, एक और अहम खबर, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट यूसुफ रज़ा गिलानी को वज़ीर आज़म के मनसब के लिए नाअहल करार दे रही है, तो दूसरी तरफ सदर जरदारी की जानिब से वज़ीर आज़म की नाअहली को ही ख़त्म करने के लिए ऑर्डिनेंस जारी करने पर गौर किया जा रहा है। रफीक भुट्टो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे जानेंगे कि मजीद कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो कि इस वक्त ज़ेरे गौर हैं और किन पर अमल किया जा सकता है। जी रफीक भुट्टो। जी, सदर आसिफ अली जरदारी को आइन के तहत ये बतौर सदर मुमलिकत ये आइनी हक हासिल है कि वो किसी भी सजा को खत्म कर सकते हैं। और क्योंकि 30 सेकंड की सजा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को तौहीन अदालत केस में दी थी और वो सजा खत्म करने के लिए सदर आसिफ अली जरदारी किसी भी वक्त कोई नया ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं जिसे बाद में पार्लियामेंट से मंजूर कराना होगा, ताकि क्योंकि इस वक्त पार्लियामेंट जो है वो इन सेशन नहीं है, इसीलिए सदर किसी भी वक्त इस किस्म का कोई भी ऑर्डिनेंस जारी करके सदर वज़ीर आज़म यूसुफ गिलानी को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी गई नाअहली की सजा को ख़त्म कर सकते हैं और वो पार्डन देने का आईनी हक रखते हैं। जी अच्छा रफीक भुट्टो, ये बताइएगा कि ऑर्डिनेंस के इजरा के हवाले से कुछ अंदाज़ा हो सकता है कि कब तक ये ऑर्डिनेंस जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तो 26 अप्रैल से ही नाअहल करार दे दिया गया यूसुफ रज़ा गिलानी को। आला सतही पीपुल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो कि पीपुल्स पार्टी की कोर कमेटी है और बहुत अहम पॉलिसी साज इदारा है, उसकी का इजलास जारी है जिसमें नाअहल होने वाले वजीर आजम यूसुफ रज़ा गिलानी भी शरीक है। उसमें कानूनी माहिरीन के मशवरे पर ये इस बात पर गौर किया जा रहा है कि क्यों न वजीर आजम यूसुफ रज़ा गिलानी को अपने ओहदे पे बरकरार रखने के लिए सदर अपने आईनी अख्तियारात अपने सवाबदीदी और आईनी अख्तियारात इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी गई सजा को कालादम करार दें और उसको माफ़ी दे दें और पार्डन दे दें। जी
रफीक भुट्टो, अब तक के लिए बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, एक बार फिर हम आपको बताते चले कि सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म गिलानी की ज़ेर सदारत ऐवान सदर में जो अहम इजलास तलब किया गया, उसका सबसे अहम नुकता जो अब तक सामने आया है वो ये कि जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यूसुफ रज़ा गिलानी को वज़ीर आज़म के मनसब के लिए नाअहल करार दे दिया गया। इसी फैसले के हवाले से वज़ीर आज़म की नाअहली को ख़त्म करने के लिए सदर ज़रदारी की जानिब से एक ऑर्डिनेंस जारी करने पर गौर किया जा रहा है। इस वक्त पीपल्स पार्टी की तमाम आला क़यादत मौजूद है इस मरकज़ी मजलिस आमला के इजलास में, जिसमें कमर ज़मान कायरा भी शामिल है, खुर्शीद शाह भी शामिल है। इसके अलावा तमाम आला क़यादत बिलावल भुट्टो ज़रदारी की भी शिरकत बताई जा रही है। तमाम मरकज़ी क़यादत इस वक्त मौजूद है इस इजलास में, और इस ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है कि वज़ीर आज़म को जो नाअहल करार दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उसके खिलाफ सदर के इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया जाए, जिसके बाद वज़ीर आज़म अपने मनसब पर बरकरार रह सकते हैं। एक बार फिर हम आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तो अपने फैसले में वज़ीर आज़म को 26 अप्रैल ही से इस मनसब के लिए नाअहल करार दे दिया गया। ताहम दूसरी तरफ ऐवान सदर में जो हुकूमती इजलास जारी था, आला सतही इजलास जारी था, उसमें एक ऑर्डिनेंस लाने पर गौर किया जा रहा है, जिसके बाद वज़ीर आज़म की नाअहली को ख़त्म किया जा सकेगा और वह बदस्तूर उस मनसब पर बरकरार रहेंगे। आपको बताते चलें कि पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जारी है और अब से कुछ देर पहले ये इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नए वज़ीर आज़म को मुंतखब करने का जो है वो भी इसमें ऑप्शन रखा गया था और मखदूम शहाबुद्दीन के इम्कान थे कि उन्हें नया वज़ीर आज़म मुंतखब किया जाएगा। लेकिन अब जो ताज़ा तरीन खबर मौसूल हुई है उसके मुताबिक सदर की जानिब से वज़ीर आज़म गिलानी की नाअहली ख़त्म करने के लिए ऑर्डिनेंस जारी करने पर गौर किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर रूलिंग केस का फैसला सुना दिया है और वज़ीर आज़म गिलानी को वज़ारत उज़्मा के ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। चीफ जस्टिस का कहना है कि यूसुफ रज़ा गिलानी पार्लियामेंट और कौमी असम्बली के रुकन भी नहीं रहे और उन्होंने सदर को हिदायत की है कि वो फिलफौर आइनी तौर पर नया वज़ीर आज़म मुंतखब करने के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे माजिद जलाल से। जी माजिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये फैसला सामने आ चुका है और इस सिलसिले में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को 26 अप्रैल से नाअहल करार दिया गया है और इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन को यह हिदायत की गई है कि वो बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन वज़ीर आज़म की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी किया जाए और इसी के साथ साथ सदर पाकिस्तान को भी ये हदायत जारी की गई हैं कि वो नए वज़ीर आज़म की तकर्री के सिलसिले में और जो नए वज़ीर आज़म मुंतखब किए जाने हैं उस सिलसिले में मुनासिब इक़दाम करें और जमहूरी जो तसलसल है उसको आगे बढ़ाने के सिलसिले में सदर पाकिस्तान जो है वो अपने इक़दाम जो है वो किए जाए। इस हवाले से आपको ये भी बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट जारी हुई थी 7 सुप्रीम बेंच की जानिब से 26 अप्रैल को, उसी जजमेंट को वायलेट करार देते हुए उसी पर फैसला दिया है और चूँकि वज़ीर आज़म की जानिब से इस फैसले के खिलाफ कोई अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं की गई थी और इस तनाजुर में सुप्रीम कोर्ट ने उनको 26 अप्रैल से नाअहल करार दिया है और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को नोटिफिकेशन भी जारी करने का हुक्म दे दिया है। आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि जो 26 अप्रैल से अब वज़ीर आज़म नाअहल हुए हैं, यहाँ पर जो हमारी आइनी और कानूनी माहिरीन से बातचीत हुई तो उनका कहना था कि अगर 26 अप्रैल से वज़ीर आज़म की नाअहलियत का वो दौर शुरू होता है तो उसके बाद जो काबीना की जानिब से फैसले सुनाए गए और जो काबीना ने जो फैसले लिए हैं और जो अभी तक प्रोसेस में ये तमाम के तमाम फैसले गैर मौसर हो जाएंगे, जबकि जो वज़ीर आज़म 26 अप्रैल के बाद तमाम सरकारी मराहत उन्होंने हासिल की और जो तनख्वाहों की मद में रकूम और जो भी उन्होंने कौमी ख़जाने से सरमाया हासिल किया है जो तनख्वाहों की मद में या जो अखराज दीगर दौरों की मद में, वो तमाम का तमाम जो है उसके लिए भी अब ज़रूरी होगा कि सुप्रीम कोर्ट में कोई एक मज़ीद पटिशन जो है वो दायर की जाए। आज की जो तारीख है, आज की तारीख तक का तमाम जो टेन्योर है वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का वो अब कालेदम करार दे दिया गया है और इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन को हतमी तौर पर यह कहा गया है कि वो वज़ीर आज़म की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी करें। इसी सिलसिले में आपको ये भी वाज़ेह करता चलूँ कि इससे कबल जब 7 रुकनी बेंच की जानिब से फैसला सुनाया गया था और उसमें आर्टिकल 63(1) का हवाला दिया गया, लेकिन उस हवाले से अभी तक जो तशरीह थी वो मुबहम अंदाज में पेश की जा रही थी। हुकूमती मौक़िफ़ यहाँ पर यही पेश किया जा रहा था कि 7 रुकनी बेंच ने वज़ीर आज़म को नाअहल नहीं करार दिया, जबकि दीगर दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ ये था जो उन्होंने अपनी दरख्वास्तों में भी इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसी किस्म का सवाल उठने का जवाज़ पैदा नहीं होता और अब अदालत उज़्मा वज़ीर आज़म को बराह रास्त जो डायरेक्ट हुक्मनामा है वो जारी करे और उसके तहत
उनको नाअहल करार दिया जाए। अदालती फैसला सामने आने के बाद किसी किस्म के सवाल उठने या इलेक्शन कमीशन की किसी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं है। इस सिलसिले में जो दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ था, उनका ये कहना था कि स्पीकर रूलिंग उस वक्त ज़रूरी समझी जाती है जब पार्लियामेंट में किसी भी ऐसे रुकने असम्बली जिसके बारे में मुबैना तौर पर इल्ज़ामात का सामना हो, और इस सिलसिले में स्पीकर इस बात के अपनी रूलिंग के जरिए फैसला करती है और इलेक्शन कमीशन हतमी तौर पर उनकी नाअहली का नोटिफिकेशन जारी करता है। लेकिन यहाँ पर जो मामला था ये बहुत वाज़ेह था। 7 रुकनी बेंच की जानिब से अपने हुक्मनामे में ये करार दिया गया कि वज़ीर आज़म ने अदालती फैसले की हुक्म अदूली की, जिसके बाद उन्होंने अदालत को रेडिक्यूल किया है, अदलिया की तस्हीह की है, और ये तमाम जो अल्फाज हैं जो इस सिलसिले में ये रेडिक्यूल का वर्ड है, ये आर्टिकल 63(1)G में आता है, जिसके तहत किसी भी रुकने असम्बली को नाअहल करार दिया जा सकता है। इस वक्त आपको बताते चले कि हमारे पास 3 रुकनी बेंच का जो मुख्तसर फैसला है उसकी कापी भी पहुंच चुकी है, और इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये जो फैसला जारी किया गया है 4 सफ़हात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसला है जो आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किया गया है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में पढ़कर सुनाया भी। और इसमें जो मज़ीद कहा गया है उसमें यही कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक्सरसाइज कर सकती है अपनी ज्यूरिसडिक्शन को। आर्टिकल 184 के तहत अज़ खुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर ले सकती थी, और इसके अलावा ये इस्तदा भी थी दरख्वास्त गुजारों की कि सुप्रीम कोर्ट इस तमाम मामले को आर्टिकल 184(3) के तहत निपटाए, और आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस मामले को जो है वो इसी के तहत ये दरख्वास्तें भी निपटाई गई हैं। इसके अलावा जो आज यहाँ पर मुख्तलिफ हवाला जात दिए गए, जो मुख्तलिफ अदालती फैसलों के हवाला जात दिए गए थे, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में शामिल किया है। उनके अलावा सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि 7 रुकनी बेंच की जानिब से जो 26 अप्रैल को यह हुक्मनामा जारी किया गया था, उसकी डिटेल रीज़न जो है वो 8 मई को जो अदालत का तफसीली फैसला है उसमें बता दी गई थी, और इसके बाद वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत की जो कार्रवाई थे वो आर्टिकल 204 सब सेक्शन 2 के तहत जारी की गई थी। ताहम ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फैसला जारी किया गया है इसके तहत ये भी वाज़ेह किया गया है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ जो तौहीन अदालत का आर्टिकल था, ये जो वज़ीर आज़म के खिलाफ नाअहली का आर्टिकल था, ये इन्वोक हुआ था, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज हतमी तौर पर उसी 7 रुकनी बेंच का जो फैसला था उसके तहत वज़ीर आज़म को नाअहल करार दिया है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये हुक्म दिया गया है कि वो इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी करें। आप इस वक्त फैसले की कापी जो है वो मेरे हाथ में देख सकती हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किया गया है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला तहरीर किया है जो कि 4 सफ़हात पर मुश्तमिल है, और इस फैसले में जो 7 रुकनी बेंच की जानिब से रीजंस रिकॉर्ड की गई थी, जो वजूहात जिनके बिना पर वज़ीर आज़म के खिलाफ 63(1)G को इन्वोक किया गया था उसका तज़किरा भी किया गया है। और इसके अलावा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में तहरीर किया है उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन इस मामले पर जो है वो जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करे, और वज़ीर आज़म अब मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट के मज़ीद रुकन नहीं रहे, और उनकी जो नाअहली का नोटिफिकेशन है वो 26 अप्रैल से ही जारी किया जाएगा। इसके अलावा जिस तरह के हमने आपको पहले बताया कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सदर पाकिस्तान को भी ये हदायत जारी की गई है कि वो ज़रूरी इक़दाम करें आइन के अंदर रहकर, और इस सिलसिले में जो जमहूरी निज़ाम का तसलसल है उसको जारी रखने के लिए, और जो जमहूरी इक़दार को परवान चढ़ाने के लिए पार्लिमानी सिस्टम की बेहतरी के लिए जो है वो मज़ीद इक़दाम करें, और किसी भी ऐसे शख्स का जो इसके हवाले से उनकी इलेक्ट किया जाए, उनको मुकर्रर किया जाए जो कि आइंदा के वज़ीर आज़म होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में तमाम दरख्वास्त गुजारों का शुक्रिया भी अदा किया है, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने वैल्यूएबल इसके अलावा अपने जो फैसले में जो है वो ये भी कहा है कि ये तमाम पॉइंट जो है वो इस सिलसिले में 26 अप्रैल का फैसला भी मद्देनज़र रखा गया है। आपको एक बार फिर बताता चलो कि ये फैसले की कापी इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जारी किया है। मुख्तसर फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किया गया था, और इसमें वो तमाम वजूहात बयान की गई हैं जिनके बिना पर वज़ीर आज़म को नाअहल करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वज़ीर आज़म की नाअहली का जो एक वाज़े तौर पर जो वजूहात बयान की गई है वो 7 रुकनी बेंच का फैसला था जो 26 अप्रैल को जारी किया गया, और उसमें वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत इसमें तस्हीह के बायस
आर्टिकल 63(1) को इन्वोक किया गया था और उसी तसलसल में आज सुप्रीम कोर्ट ने उसी तमाम जो फैसले के पैराग्राफ थे उनको मद्देनजर रखकर यह फैसला सुनाया है। इसके अलावा जो मुख्तसर फैसले में फ़िलहाल अटॉर्नी जनरल की जानिब से जो एतराज़ात उठाए गए थे, जो वज़ीर आज़म के वकील एतजाज़ अहसन की जानिब से एतराज़ात उठाए गए थे, उनका जवाब नहीं दिया गया। ताहम आज से चंद रोज़ के बाद जब इस केस का तफसीली फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किया जाएगा तो उनमें उन तमाम वजूहात का जिक्र भी किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल यह मुख्तसर फैसला जारी किया गया है जिसमें वज़ीर आज़म की नाअहलियत का जिक्र है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 26 अप्रैल से जिसका तज़किरा किया है और इस सिलसिले में ये हुक्म दिया है कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर वज़ीर आज़म की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी करे। जी बहुत शुक्रिया मादर जलाल, हमें अपडेट कर रहे थे। स्पीकर केस के हवाले से, स्पीकर रूलिंग केस के हवाले से उनका कहना है कि अदालत उज़्मा ने वज़ीर आज़म गैलानी को वज़ारत उज़्मा के मनसब के लिए नाअहल करार दे दिया है और उन्हें पार्लियामेंट के रुकन और वो कौमी असम्बली के रुकन भी नहीं रहे और इलेक्शन कमीशन को भी हुक्म दिया है चीफ जस्टिस ने कि वज़ीर आज़म की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी करे। मीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन साहब इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे जानेंगे कि इस बारे में उनका नुक्ता नज़र क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सैयद मुनव्वर हसन साहब वक्त न्यूज़ से गुफ्तगू के लिए। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने फैसले पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी कि इस मनसब के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी नाअहल हो चुके हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि उन्होंने अब तक जो भी फैसले किए और जो अहम इक़दाम उठाए उनकी हैसियत का क्या कहेंगे आप, और दूसरा ये कि इत्तेहादियों का किरदार इसमें क्या रहा, सवालिया निशान है उस पर भी। असल में इत्तेहादी तो दुमछल्ला हैं और अपने अपने गलत कामों को छुपाने के लिए इत्तेहादी बने हुए हैं। सीटें भी उनकी इतनी नहीं है और अपने अपनी मराहत ली हैं उन्होंने। किसी ने अपने बेटे को छुड़ाया है, किसी ने भतीजे को छुड़ाया है, कोई अपनी दहशतगर्दी में पर्दा डाल रहा है, इसलिए ये बात कम अहम है। लेकिन ज्यादा अहम बात वही है जो आपने शुरू में दरियाफ्त की है कि 26 अप्रैल से लेकर अब तक तो बेशुमार फैसले हुए हैं। वज़ीर आज़म साहब जरूरत से ज्यादा एक्टिव भी नजर आए हैं और बजट भी पास हुआ है और इसी तरीके से कानूनी फैसले भी बहुत से हुए हैं। जाहिर है कि उन तमाम फैसलों की हैसियत सिफर हो जाती है क्योंकि वज़ीर आज़म की नाअहली और उनका अनसीट होने के नतीजे में काबिला भी फौरी तौर पर तहलील हो जाती है। तो इसलिए कानूनी तौर पर तो ये 26 अप्रैल तक का पीरियड एक वैकुम है, इल्ला कि अदालत ही इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त करके कोई नया बात सुझाए, वरना इस वक्त तक तो जो फैसले के हवाले से पोजीशन है वो बैक टू स्क्वायर वन वाली पोजीशन है। तो दूसरी तरफ सैयद मुनव्वर हसन साहब, हम ये देख रहे हैं कि ऐवान सदर में ये बात सोची जा रही है कि ऑर्डिनेंस एक जारी किया जाए वज़ीर आज़म की नाअहली को रोकने के लिए। अगर ऐसा ऑर्डिनेंस सामने आता है तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से भी? नहीं, अगर ऑर्डिनेंस सामने आता है और वो मुतसादिम है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तो वैसे नल एंड वाइड हो जाएगा, लेकिन लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे और विद इन 24 आवर्स सुप्रीम कोर्ट उस बारे में फैसला दे देगी। क्योंकि पीपल्स पार्टी की ये रीत और रविश जो है इदारों को मुतसादिम करने की और मैं ना मानूं की हटधर्मी की जो कैफियत है उसका इलाज तो यही है कि जल्दी फैसले किए जाएं और सॉफ्ट पैडल न किया जाए बल्कि बहुजलत फैसले करके इनको दो टोक अंदाज में आईना दिखाया जाए। अच्छा, इस तमाम तर जो मामला है इसमें स्पीकर कौमी असम्बली का किरदार क्या रहा सैयद मुनव्वर हसन साहब? स्पीकर ने भी ओवर स्टेप किया था, अपने हदूद से तजावुज करने की बात की थी और अमलन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नल एंड वाइड करने की बात की थी। इस पर वजह तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि ये तो अदलिया की आज़ादी पर एक हमला था जो स्पीकर की तरफ से हो गया। तो इस एतबार से उनकी बातें तो हवा में तहलील हो गई हैं, कोई हैसियत कोई वजन उसके अंदर बाकी नहीं रहा है। अच्छा, अब इसके बाद के अगर सदर आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से कोई ऑर्डिनेंस सामने आ जाता है या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम नहीं किया जाता तो आप क्या समझते हैं मुल्क में किस तरह की फिजा पैदा हो सकती है? लेकिन मुल्क में तो फिजा खराब है ही, चाहे वो लोड शेडिंग का नाम लें आप या इदारों के तसादुम के नतीजे में जो सूरत हाल पंजाब वर्सेस मरकज बनी हुई है, कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो सुकून और सकीनत वाली हो। तमाम चीजें अनलॉफुल हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने असर नौ कानून की बालादस्ती और आइन की सुप्रीमेसी के हवाले से बात की है। तो इस एतबार से अगर पीपल्स पार्टी उसी ट्रैक पर चलती है जिस पर वो चलने की वो आदी है 1970 से 71 से, मैं न मानूं की रट लगाती है और दर तुम दरहम और जो मशरक़ी पाकिस्तान जाएगा उसकी टांगे तोड़ देंगे। अगर ये इसी रविश पर इसी कल्चर को फरोग देती है तो जाहिर है कि खुद भी नुकसान उठाएगी और मुल्क का भी कुछ ना कुछ नुकसान जरूर करेगी। बहुत शुक्रिया आपका सैयद मुनव्वर हसन साहब, अमीर जमात इस्लामी। वक्त न्यूज़ के साथ राब्ते में थे और वक्त न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना था कि इत्तेहादियों का किरदार तो इस तमाम तर मामले में दुम छल्ले का सा रहा है, ताहम इस तमाम तर मामले के बाद हम ये देख रहे हैं कि मुल्क तो पहले ही मसाइल का शिकार है। इस तरह के फैसलों के बाद हुकूमत तसादुम की राह पर चल निकली है।
नाज़रीन, एक बार फिर हम चलेंगे अपने नुमाइंदा माजिद जलाल की जानिब सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो मौजूद है, और उनके साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट बार रावलपिंडी के साबिक सदर, जो उनसे कानूनी नुक्ता नज़र, इसके अलावा दीगर आइनी और कानूनी माहिरीन की राय हम तक पहुँचाएंगे। जी माजिद जलाल। जी बिल्कुल, जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये फैसला जारी किया जा चुका है और इस मुख्तसर फैसले में वज़ीर आज़म को नाअहल करार दिया गया है, और इस सिलसिले में जो 26 अप्रैल को 7 रुकनी बेंच का फैसला आया था, उस तारीख से वज़ीर आज़म को नाअहल करार दिया गया है और इसका नोटिफिकेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन को जारी करने का हुक्म दिया गया है। ताहम फैसले के बाद अब क्या सूरत हाल है और इस सिलसिले में मज़ीद क्या आइनी और कानूनी तौर पर पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं, और इस सिलसिले में अभी जो फैसले की सूरत हाल है इसके बाद क्या जो वाज़ेह तौर पर आइनी और कानूनी सूरत हाल सामने आएगी, इस हवाले से बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट मौजूद हैं, राजा आमिर अब्बास। उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। राजा साहब, अभी जो फैसला आ गया इसके बाद पहले तो ये बताते हैं कि वज़ीर आज़म की अब क्या कानूनी हैसियत बाकी रह सकी? देखिए जी, अब इस फैसले के बाद तो ये सवाल ही नहीं पूछना चाहिए कि वज़ीर आज़म की क्या कानूनी हैसियत रहेगी। उनकी कानूनी हैसियत ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि यूसुफ रज़ा गिलानी सीजेस टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इप्सो फैक्टो विद द फैक्ट फ्रॉम 26 अप्रैल, तो वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म नहीं रहे। ठीक है राजा साहब, यहाँ पर अब ये भी सुना जा रहा है कि सदर की जानिब से ऑर्डिनेंस जारी किया जा रहा है इस अदालती फैसले के खिलाफ, क्या ऐसा मुमकिन है? देखें जी, ऑर्डिनेंस बिल्कुल मुमकिन नहीं है और ऑर्डिनेंस में कोई ऐसी चीज़ नहीं ला जा सकती कि फैसले को कालादम करार दिया जाए। अमूमन सदर की जानिब से कन्विक्शन पर जो है वो माफ़ीनामा होता है, लेकिन यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्मनामा है। मैं चाहता हूँ कि आप मज़ीद वाज़ेह कर दें हमारे नाज़रीन के लिए, क्या इस अदालती फैसले के खिलाफ कोई ऐसा सदारती ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है जिससे इस फैसले की रास्ते में कोई रुकावटें खड़ी की जाए? जी, ये फैसला और कन्विक्शन का फैसला दो मुख्तलिफ फैसले हैं। कन्विक्शन का जो इनका फैसला हुआ था जिसके तहत इन्हें सज़ा दी गई थी, वो सज़ा तो सदर ममलिकत माफ़ कर सकते हैं, लेकिन आज का जो फैसला है उसमें डिक्लेरेशन दे दी गई है। कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है कि वज़ीर आज़म, साबका वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब डिसक्वालीफाई हो चुके हैं मेंबर पार्लियामेंट के, और चूँकि वो डिसक्वालीफाई हो गए हैं लिहाजा वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म की हैसियत से बरकरार नहीं रख सकते, एंड ही सीजेस टू बी द प्राइम मिनिस्टर। तो इस फैसले में सदर ममलिकत साहब किसी किस्म की कुछ उनके पास इख्तियार हासिल नहीं। मगर राजा साहब, क्या ये मुमकिन है कि जिस तरह स्पीकर रूलिंग को आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि उन्हें कोई पार्लिमानी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं, लेकिन उससे एक वक्त हासिल किया गया और जब तक उसका फैसला आता, और जिस तरह अब इसी के खिलाफ नज़रसानी अपील भी माजिद जलाल से हमारा राब्ता थोड़ी देर के लिए मुनक़ता हुआ। नाज़रीन, हम आपको इस हवाले से नुक्ता नज़र ज़रूर पहुँचाएंगे जो आइनी और कानूनी माहिरीन की राय है। एडवोकेट राजा आमिर अब्बास सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो माजिद जलाल के साथ मौजूद थे, उनके मुताबिक उनका ये कहना था कि अब तो ये सवाल ही उठाया नहीं जा सकता कि वज़ीर आज़म अहल रहे या नहीं। सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के बाद ये वाज़े तौर पर सामने आ चुका है, खुलकर सामने आ चुका है कि यूसुफ रज़ा गिलानी इस मनसब पर 26 अप्रैल से ही फाइज नहीं रहे। इसके अलावा जो मुमकिन ऑर्डिनेंस के हवाले से बात की जा रही है सदर ममलिकत की जानिब से जो जारी किया जा सकता है, उस पर बात करते हुए राजा आमिर अब्बास एडवोकेट हैं, जो उनका ये कहना था कि ये ऑर्डिनेंस मुमकिन ही नहीं है कि ये जारी किया जा सके। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये फैसला सुनाया जा चुका। दूसरी जानिब ऐवान सदर में एक अहम इजलास जिसमें ऑर्डिनेंस के इजरा के हवाले से बात की जा रही है। इस वक्त सीनियर वाइस प्रेसिडेंट तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब वक्त न्यूज़ से गुफ्तगू के लिए। आपसे जानना चाहेंगे कि आप सुप्रीम कोर्ट तो ये फैसला दे चुकी, लेकिन दूसरी तरफ ऐवान सदर में कुछ और बातें जारी हैं जो कि ऑर्डिनेंस के इजरा के हवाले से हैं। आप देख रहे हैं कुछ ऐसा तसादुम इदारों के दरमियान वाज़े तौर पर? मैं समझता हूँ कि बड़ा वाज़े फैसला है और अब इसमें कोई अपना रखना अंदाजी जो है वो ना जमहूरियत के मफाद में होगी ना मुल्क के मफाद में होगी। और अगर ऐवान सदर कोई नई साजिश करने पर तुला हुआ है तो वो मुल्क के मफाद में और जमहूरियत के मफाद में नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने गिलानी साहब को नाअहल करार दे दिया है। उन्होंने कह दिया है कि वो 26 अप्रैल के फैसले से वजीर आजम नहीं रहे। अब हुकूमत के पास बड़ा एक कानूनी और एक जमहूरी रास्ता मौजूद है, और वो रास्ता है कि वो एक स्पेशल इजलास बुलाएं और एक नया कायदे ऐवान मुंतखब कर ले। उनके पास अददी अक्सरियत मौजूद है और उस अक्सरियत के बलबूते पर
नया वजीर आजम मुंतखब कर सकते हैं। क्या पीपल्स पार्टी में कोई और ऐसी शख्सियत नहीं है जो ये जिम्मेदारी संभाल सके? यकीनन है। तो मैं समझता हूं कि उन्हें कानूनी और जमहूरी रास्ता अख्तियार करना चाहिए। उन्होंने जितना इस केस को तवील करने की कोशिश की वो कर चुके, और आपने देखा कि उनके जो वकला थे आज उनके पास दलाइल भी नहीं थे, वो सिर्फ जो है वो जज्बाती बातें कर रहे थे, कोई ठोस बात वो नहीं कर रहे थे। और मैं कल के अपने प्रोग्राम में कल रात भी कह चुका था कि इनके पास कोई अब कानूनी रास्ता नहीं है, सियासी रास्ता मौजूद है, और वो है कि एक नया वजीर आजम मुंतखब कर लिया जाए। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब, कानूनी रास्ता तो आपने जैसे कि कहा कि मौजूद नहीं है, लेकिन हमने देखा है कि कानून और आइन को बहुत ज़्यादा उलझा दिया गया है इस गवर्नमेंट की जानिब से। 26 अप्रैल से वज़ीर आज़म का मनसब खाली है, तो जो फैसले काबीना की जानिब से किए गए, बजट पास किया गया, इसके अलावा वज़ीर आज़म ने जो फैसले लिए, उनकी हैसियत अब क्या रहेगी? इस बात का तयन कौन करेगा? देखिए, मैं रिकॉर्ड पे हूँ, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, और ये बात मैंने जो हमारे मुस्लिम लीग नून के भाई हैं, मैंने उनकी खिदमत में भी गुजारिश की थी, जो इस वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ पे तशरीफ फरमा है, कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि गिलानी साहब कन्विक्शन के बाद उनको आप वजीर आजम नहीं मानते, तो दूसरी तरफ आप उनके बजट इजलास में शिरकत कर रहे हैं, बजट का हिस्सा बन रहे हैं, तो ये एक तजाद है और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। बहरहाल आज जो फैसला आया है इसने तो एक नया इशू है जिस पर गौर करना होगा, और वकला को, मैं वकील तो नहीं हूँ, वकला से इस पर मशावरत यकीनन करेंगे। हमने ये किया है कि अभी मेरी चेयरमैन इमरान खान साहब से टेलीफोन पर बात हुई है, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का एक हंगामी इजलास हमने कल इस्लामाबाद में मुनाकिद किया है। तहरीके की पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजी कमेटी जो है वो कल हमारा जो सेंट्रल ऑफिस है उसमें 12 बजे उसका इजलास होगा, और हम जो इस वक्त मुल्क की जो तेजी से बदलती हुई सूरत हाल है और लोड शेडिंग की जो मुल्क में कैफियत है, जो हंगामे हो रहे हैं, और जो ताजरों ने 23 जून को शटर डाउन का एक प्रोग्राम मुरतब कर रहे हैं, इस 3 नुकाती एजेंडे पर हम इजलास इंशाअल्लाह कल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका शाह महमूद कुरैशी साहब, तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, वक्त न्यूज़ के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। तहरीक इंसाफ का हमने मौक़िफ़ जाना, मुस्लिम लीग नून की जाने बढ़ेंगे। सेक्रेटरी इत्तलात मुस्लिम लीग नून मुशाहिदुल्लाह साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। मुशाहिदुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया वक्त न्यूज़ से गुफ्तगू के लिए। आपसे ये जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले फैसले पर तस्दीक की मोहर सब्त कर दी है, और मुस्लिम लीग नून की जानिब से गो गिलानी गो जो तहरीक शुरू की गई थी, वकला की जानिब से आज फिर वही नारे बुलंद किए गए हैं, लेकिन ऐवान सदर में इजलास में कुछ और कहानी सामने आ रही है और एक ऑर्डिनेंस लाने की बात की जा रही है। आप क्या कहेंगे इस पर? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, बात यह है कि ये जो कोई आज हुआ है, ये यानी कि 26 अप्रैल ही को अगर मौजूदा हुकूमत समझ जाती, और ये जो हर बात में एक वतीरा बनाया हुआ है इन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट जो है उससे बदला लेना है और उसके फैसलों की हर कीमत पे तसादम की राह इख्तियार करनी है, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। और इन्होंने इसको मतलब कि बिल्कुल ऐसे यानी कि इमैच्योर पॉलिटिशियंस की तरह से डील किया। हुकूमतें कभी भी ऐसे नहीं करती हैं, और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का एहतराम करना जो है हर एक पे वाजिब है, और ख़ास तौर से चीफ एग्जीक्यूटिव पे। लेकिन अब तो इनके पास कोई चॉइस नहीं रही, कोई रास्ता नहीं रहा, और अगर जिस तरह से फैसले में भी उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट जरदारी जो है वो अपना किरदार अदा करें और जमहूरियत को के लिए कोशिशें करें, मतलब यही है कि वो जो आईनी तौर पे यानी कि उनके इख्तियारात हैं उसको इस्तेमाल करें मुस्बत अंदाज में। अब भी अगर ये मुस्बत अंदाज नहीं बनाएंगे तो ये इसका मतलब है इन्होंने तय कर लिया कि इस मुल्क को ये गरक करना चाहते हैं और इसको बनाना रिपब्लिक बनाना चाहते हैं। वो बहरहाल हम नहीं बनने देंगे इंशाल्लाह, ना पाकिस्तान के अवाम बनने देंगे, ना इस मुल्क के वकला बनने देंगे। ये जो गो गिलानी गो के नारे लग रहे थे, असल में तो ये उस फैसले के नतीजे में लग रहे थे। मुशाहिदुल्लाह साहब, कोई उम्मीद रखते हैं आप अभी भी हुकूमत से कि ये कानूनी और जमहूरी रास्ता इख्तियार करेगी? उम्मीद जो इनका माजी देखा जाए तो उससे तो हमें कोई इनसे अच्छी तवक्को इसलिए नहीं है कि ना ये जमहूरियत को समझते हैं, ना इनमें इतना अक्ल व दानिश और शऊर है कि ये कोई ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट्स में मुल्क के मामलात को और इसके मुस्तकबिल जो है उसको देख के कोई फैसले करें। लेकिन हम बहरहाल यही मुतालबा करेंगे कि फिल फॉर जो भी फैसला, हम पहले भी ये कहते रहे हैं कि अदालतों के फैसले जो हैं आपको पसंद हो या ना हो,
اس پہ عمل کرنا جو ہے وہ یعنی کہ آپ کا فرض اولین ہے، اور اس کو فیصلے پہ نہ صرف عمل درآمد کریں بلکہ مثبت انداز سے کریں، ملک کا بھی فائدہ ہے، ان کا بھی فائدہ ہے۔ اچھا مشاہد اللہ صاحب، ایک اور بہت اہم بات اس میں وزیر اعظم نہ صرف یہ کہ حکومت کی جانب سے کچھ ہٹ درمی دکھائی گئی اور 26 اپریل کے بعد سے وزیر اعظم اب تک مختلف فیصلے بھی کابینہ کے کرتے رہے، تو دوسری جانب اتحادیوں کا کردار بھی اگر ہم دیکھیں تو اس میں وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی جن کے بارے میں سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کا منصب خالی ہو چکا، اتحادیوں کا بہت اہم کردار رہا ہے اس فیصلے کے بعد سے، اتحادیوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، اتحادیوں کے ہم نے تو اس وقت بھی کہا تھا، ہمارے جو اپوزیشن لیڈر ہیں چودھری نثار علی خان صاحب، انہوں نے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ وہ جو 20ویں ترمیم کے تحت وہ چیف الیکشن کمشنر پہ مشورہ کرنا چاہتے تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ان لیجیٹمائز وزیر اعظم ہیں اور یہ ان سے میں بات اس لیے نہیں کر سکتا کہ یہ جائز نہیں ہے۔ تو اب وہ بھی بات سامنے آ گئی ہے سب کے سامنے کہ یہ یعنی کہ وزیر اعظم ہے ہی نہیں۔ اب جب وزیر اعظم ہے نہیں تو ان کے اقدامات جو تھے وہ سارے سوالیہ نشان بن گئے ہیں، اور جو اتحادی جماعتیں ہیں خاص طور سے انہیں ہمیں افسوس یہ ہے کہ وہ اگر کوئی کردار ادا کرتی ہیں، ایک جمہوری کردار ادا کرتی ہیں، اور جو عدلیہ کے فیصلے ہیں ان فیصلوں پہ عمل درآمد کرنے کے لیے اگر حکومت پہ دباؤ ڈالتی ہیں تو شاید آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا، لیکن آج بھی ہم جو اتحادی جماعتیں ہیں ان سے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ حکومت اور آصف زرداری اور گیلانی کا جو اقتدار ہے جو کہ اب ختم ہو چکا ہے، اس کی حفاظت کرنے کے بجائے پاکستان کے 18 کروڑ عوام کے جو مسائل ہیں اور ان کے جو دیگر حقوق ہیں ان کو یعنی کہ تحفظ دینے کی کوشش کریں، اور اپنا کوئی رول پلے کریں اور ان کو سمجھائیں، اور ورنہ اتحادی جماعتیں جو ہیں ان کا بھی جب تاریخ میں لکھا جائے گا تو پتہ یہی سامنے آئے گی بات کہ انہوں نے سپریم کورٹ کو خاص تصادم کی راستے میں انہوں نے زرداری صاحب اور گیلانی کا ساتھ دیا تھا، جو کہ ان کے لیے ہمیشہ تکلیف کا باعث رہے گا۔ اچھا مشاہد اللہ صاحب، آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، تمام سیاسی جماعتیں اس بات کی ضرورت پر زور دیتی رہی ہیں کہ اس موجودہ صورتحال میں یا ماضی میں بھی جو بھی صورتحال رہی اس میں سب سے زیادہ ٹف ٹائم مسلم لیگ نون دے سکتی تھی گورنمنٹ کو، لیکن مسلم لیگ نون کی جانب سے لچکدار رویہ اختیار کیا گیا اور صرف نعرے بازی اور مخالفت تک ہی بات رکھی گئی، کوئی بڑا سٹیپ نہیں اٹھایا گیا۔ اب آپ یہ بتائیے گا کہ اب جو صورتحال جس میں سپریم کورٹ واضح طور پر یوسف رضا گیلانی کو وزیر اعظم کے منصب کے لیے نااہل قرار دے چکی ہے، لیکن دوسری طرف ہٹ دھرمی حکومت کی برقرار ہے، تو مسلم لیگ نون کیا کوئی ایسا ٹھوس لاہ عمل اختیار کرنے جائے گی کہ وہ کردار ادا کر سکے آنے والے سینیریو میں؟ دیکھیں، آپ نے جو یہ اپنے سوال میں تبصرہ فرما دیا ہے کہ ہم نے لچکدار رویہ ہم نے جمہوریت کے لیے ضرور رکھا ہے، لیکن حکومت کے اقدامات کے لیے تو کبھی بھی نہیں رکھا، اور یہ ہماری ہی پارٹی ہے جس کے لوگ مختلف کیسز میں، چاہے رینٹل پاور اور یا یہ بھی کیس ہو، اس کے علاوہ اور دیگر کیسز میں ہمارے لوگ عدالت میں گئے ہیں، اور ہم پہلے دن سے عدالت کا مسئلہ نہیں ہے نہ چیف جسٹس کا، ہم یعنی کہ قانون کی حکمرانی کے ساتھ ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا وجود جو ہے وہ قانون کی حکمرانی کے لیے ایک بنیادی اہمیت کا حامل ہے، اور ہمارا وہ کردار جو ہے ماضی میں بھی جاری رہا ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گا، اور ہم اس معاملے پہ کسی بھی قسم کا کوئی لچکدار رویہ اختیار نہیں کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا مشاہد اللہ صاحب، کوئی لچکدار رویہ آپ اختیار نہیں کریں گے۔ لچکدار رویہ کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی، آپ مسلم لیگ نون پر اکثر یہ تنقید کی جاتی ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے کہ مسلم لیگ نون نے فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کیا، اسی حوالے سے ہم نے سوال کیا سیکریٹری اطلاعات مسلم لیگ نون مشاہد اللہ صاحب سے، ان کا کہنا تھا کہ اب کوئی لچکدار رویہ اختیار نہیں کیا جائے گا، لچکدار رویہ میڈیا کے لیے اختیار کیا گیا، حکومت کو بالکل اس حوالے سے کوئی فری ہینڈ یا کوئی آسان پالیسی کی طرف نہیں بھیجا گیا، اور نہ ہی حکومت کے ساتھ کوئی لچکدار یا نرم رویہ اختیار کیا گیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ بجائے یہ کہ موجودہ صورتحال میں اس طرح کے بحرانوں کے حوالے سے صورتحال پیدا کی جائے، بلکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ 18 کروڑ عوام کے مسائل حل کرنے کی طرف توجہ دی جائے۔ سیکریٹری اطلاعات مسلم لیگ نون مشاہد اللہ صاحب وقت نیوز سے گفتگو کر رہے تھے، اس سے قبل تحریک انصاف کے سینئر وائس پریزیڈنٹ شاہ محمود قریشی صاحب نے ہم سے بات کی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون سے وہ بہت عرصے سے یہ درخواست کرتے رہے ہیں، مسلم لیگ نون کے سامنے بھی یہ نقطہ رکھتے رہے ہیں کہ جو فیصلے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی 26 اپریل کے بعد سے کر رہے تھے ان میں مسلم لیگ نون بھی کسی حد تک شریک رہی ہے، جن میں ایک بجٹ بھی شامل ہے، بجٹ کا حصہ بھی بنتے رہی ہے مسلم لیگ نون۔ تو یہ جو تمام تر صورتحال ہے اس میں کافی زیادہ کمپلیکس بنا دیا ہے صورتحال کو، کیونکہ نہ صرف یہ کہ بہت سے قانونی اور آئینی ابہام پیدا ہو گئے ہیں، بلکہ بہت سے سوالیہ نشان بھی 26 اپریل کے بعد سے لے کر اب تک بہت سے معاملات ایسے جو کہ وزیر اعظم چلاتے رہے ہیں یوسف رضا گیلانی اس حوالے سے اٹھ رہے ہیں، اور یہ ان سوالوں کا جواب بھی سامنے آنا باقی ہے، اور آئینی اور قانونی ماہرین اس حوالے سے کوئی واضح موقف اختیار کر سکتے ہیں۔
आपको बताते चलें कि अदालत उज़्मा ने आज स्पीकर रूलिंग केस में फैसला सुना दिया है हतमी तौर पर, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी को वज़ारत उज़्मा के मनसब के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। और चीफ जस्टिस का कहना है कि यूसुफ रज़ा गिलानी रुकन कौमी असम्बली और रुकन पार्लियामेंट भी नहीं रहे। और चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है कि वज़ीर-ए-आज़म की नाअहली का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर जारी किया जाए। आपको बताते चलें कि ये एक मुख्तसर फैसला सुनाया गया है जो कि 4 सफ़ात पर मबनी था और तफसीली फ़ैसला कुछ दिनों के बाद सुनाया जाएगा। एतजाज़ हसन के एतराज़ात का फ़िलहाल जवाब नहीं दिया गया, जो कि तफसीली फ़ैसले में दिया जाएगा। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पीकर रूलिंग केस का फैसला सुना दिया है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म गिलानी को नाअहल करार दे दिया गया है वज़ारत उज़्मा के मनसब के लिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यूसुफ रज़ा गिलानी 26 अप्रैल से नाअहल हो चुके थे। उनका ये भी कहना है कि इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने जो फैसले किए वो सब गैर फ़ाल हो गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दरख्वास्त गुज़ारों का भी शुक्रिया अदा किया। और 7 रुकनी बेंच ने जो 26 अप्रैल को फैसला किया था उसको भी इसमें देखा गया है, उसकी रोशनी में भी ये फैसला किया गया है। और 3 रुकनी बेंच ने आज ये फैसला दिया। मुख्तसर फैसला था आज का, जबकि तफसीली फैसला कुछ दिनों के बाद जारी किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। आपको बताते चलें कि स्पीकर रूलिंग केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला कर दिया है, जिसमें कि यूसुफ रज़ा गिलानी को वज़ारत उज़्मा के मनसब के लिए नाअहल करार दिया गया है। माहिर कानून ए के डोगर इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ए के डोगर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया वक्त न्यूज़ से गुफ्तगू के लिए। आपसे जानना चाहेंगे कि अब वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ जो नाअहली और अहलियत के हवाले से जो फैसला था वो तो सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े कर दिया कि वज़ीर-ए-आज़म का मनसब ही खाली हो चुका, लेकिन जो बात की जा रही है एपेलेट कोर्ट के हवाले से, इस पर हम आपकी कुछ कानूनी बसीरत से जानना चाहेंगे। दरअसल आपने जो कुछ कहा है बस मुझे कुछ ये समझ में आई है कि आप कुछ फरमा रही हैं, लेकिन आई हैव नॉट फॉलोड इट, क्योंकि आई एम ट्रैवलिंग एज आई सेड, मैं जा रहा हूँ इस वक्त सड़क पे, तो बात आपकी सही नहीं है। आप दोबारा फरमाइए। एक डॉक्टर साहब, मैं आपसे सवाल को मुख्तसर करके जानना चाहूंगी कि एपेलेट कोर्ट के हवाले से जो बात की जा रही है कि इस फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है या नहीं, ये बता दीजिएगा। अपील कोई नहीं होती इसमें एक होता है रिव्यू जी। तो रिव्यू जो है उसमें कुछ भी नहीं होता, रिव्यू अक्सर खारिज हो जाता है और उसमें कुछ स्टे वगैरह नहीं मिलता। तो ये अब गिलानी साहब जो है उनके लिए कोई जगह नहीं रह गई है, मुश्किल है उनके लिए कि वो, मुझे इंडिया से अभी एक चैनल ने फोन किया था। तो एक डॉक्टर साहब, जो ऑर्डिनेंस, सदारती ऑर्डिनेंस की इजरा की बात की जा रही है, ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है इस मौजूदा सूरत हाल में? एक डोगर साहब, माहिर कानून से राब्ता मुनक़ता हो गया। उन्होंने कहा कि अपील की गुंजाइश मौजूद नहीं है यूसुफ रज़ा गिलानी के पास, लेकिन रिव्यू की एक गुंजाइश मौजूद है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी ये कहा गया है कि एपेलेट कोर्ट में ही बात की जा सकती है इस फैसले पर रिव्यू के हवाले से। और एपेलेट कोर्ट क्योंकि अदालत का अपना ही एक बेंच होता है जो कि अदालती फैसलों के खिलाफ ही अपील की समाअत करता है, लिहाजा इस हवाले से हम सदारती ऑर्डिनेंस के इजरा की भी हैसियत जानने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ एक सवाल ये भी इस वक्त सब जहनों में है कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि वज़ीर-ए-आज़म के मनसब पर फाइज नहीं रहे थे 26 अप्रैल के बाद से, तो जितने उन्होंने फैसले वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर 26 अप्रैल के बाद से किए हैं, उनकी आइनी और कानूनी हैसियत क्या है, ये तमाम तर ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी जानना बाकी हैं। इसके लिए हम आइनी और कानूनी माहिरीन की राय मुस्तनद मोहर के साथ आप तक पहुँचाएँगे। इसी के लिए हमने एक डोगर साहब से भी रब्ता कायम किया। उससे कबल हम मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं का नुक्ता नज़र भी आप तक पहुँचा रहे हैं। और ये तमाम तर मामला है यूसुफ रज़ा गिलानी की वज़ारत उज़्मा की अहलियत और नाअहलियत के हवाले से। कानूनी माहिरीन का कहना है कि यूसुफ रज़ा गिलानी को 26 अप्रैल के बाद से जो लोग वज़ीर-ए-आज़म कहते रहे और करार देते रहे, उन तमाम को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुल्क के आइन के साथ मज़ाक किया है। नाअहली के बाद वज़ीर-ए-आज़म के फैसले यानी कि 26 अप्रैल से अब तक तमाम गैर फ़ाल हैं। इस वाले से मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे। हम हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब, आप क्या कहेंगे, आज फैसला आ गया है स्पीकर रूलिंग केस के हवाले से और वज़ीर-ए-आज़म को नाअहल करार दे दिया गया है, जबकि ऐवान सदर की जानिब से भी खबरें सुनने को मिल रही हैं कि सदर वज़ीर-ए-आज़म की नाअहली ख़त्म करने के लिए ऑर्डिनेंस जारी करने पर गौर करें। आप क्या कहेंगे? देखें जी, बहरान तो पैदा हो गया और ये अंधों को भी नजर आ रहा था जिन्होंने इनको मशवरा दिया कि आप अपील ना करें, वो बेवकूफ़ थे। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये बहरान इन्होंने खुद बेआस पर
اور انہوں نے خود یہ بحران پیدا کیا ہے، ورنہ اپیل کرنا تو ہر بندے کا حق تھا. اور اب یہ بجٹ بھی سوالیہ نشان ہو گیا. کیا فیصلے ہوتے ہیں اور اس کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک میں ایسا شدید آئینی بحران پیدا ہو چکا ہے کہ جو اپنا رنگ دکھائے گا. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ شرافت سے اس فیصلے کو مانتے ہیں، یہ قانونی اور احترامی فیصلے سے مانتے ہیں کہ یا یہ خراب ہوتے ہیں اور ذلت اور رسوائی سے جاتے ہیں. جانا انہوں نے ہے، یہ ان کا ثواب دیدی فیصلہ ہے کہ عزت اور رسوائی سے جانا ہے، یہ جوتے کھا کے جانا انہوں نے ہے. تھینک یو. لیکن شیخ رشید صاحب، ایوان صدر میں جو اجلاس جاری ہے اس میں دو آپشنز زیر غور ہیں. ایک تو یہ کہ وزیر اعظم کے لیے جو ممکنہ امیدوار ہے اس کے نام پر بھی غور کیا جا رہا ہے، دوسری طرف ایک صدارتی آرڈیننس کے اجرا پر بھی غور کیا جا رہا ہے. اس بحران کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ سربراہ عوامی مسلم لیگ، آپ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں؟ ہمارا رابطہ شیخ رشید صاحب سے منقطع ہو گیا. اس وقت ناظرین وزیر اعلیٰ پنجاب جناب شہباز شریف کی میڈیا سے گفتگو ملاحظہ کیجیے. لہٰذا یہ ہماری اپیل کے اوپر فیصلہ ہوا ہے، پی ایم ایل این کی اپیل کے اوپر. میاں صاحب، وزارت عظمیٰ کے لیے مسلم لیگ نون امیدوار دے گی؟ آپ کو یہ خواب کس طرح آ گیا کہ ہم دیں گے؟ ہم قطعاً امیدوار نہیں، قطعاً امیدوار نہیں. سر کس کی حمایت کریں گے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب جناب شہباز شریف میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ جو فیصلہ سامنے آیا ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی اپیل کے اوپر سامنے آیا ہے اور یہ فیصلہ جو ہے لہٰذا اس کا کریڈٹ جو ہے مسلم لیگ نون کو جاتا ہے. اس کے علاوہ جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ وزارت عظمیٰ کے لیے مسلم لیگ نون کی جانب سے کیا کوئی امیدوار ہو سکتا ہے تو ان کا یہ جواباً کہنا تھا کہ آپ کو یہ خواب کیسے آ گیا، ہم میں سے کوئی بھی وزارت عظمیٰ کے عہدے کا امیدوار نہیں ہے. ناظرین، آپ اس وقت جو وقت نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں وہ اسپیکر رولنگ کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے ہے، جس میں چیف جسٹس نے قرار دے دیا کہ اسپیکر کی رولنگ کو پارلیمانی تحفظ حاصل نہیں ہے. یہ فیصلہ سپریم کورٹ کی جانب سے سامنے آیا. سپریم کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ اسپیکر رولنگ کیس میں مختلف درخواستوں کے ضمن میں سامنے آیا اور یہ درخواستیں پاکستان مسلم لیگ نون کے علاوہ تحریک انصاف اور دیگر درخواست گزاروں کی جانب سے بھی دائر کی گئی تھیں، جس میں اسپیکر کی رولنگ کو چیلنج کیا گیا تھا. اور اسی سماعت کے دوران مختلف دلائل سامنے آئے اور ریمارکس بھی سامنے آئے، مختلف قانونی نکات زیر بحث رہے. آج جب یہ فیصلہ سامنے آ گیا ہے تو اس کے بعد عدالت عظمیٰ نے ایک بات واضح طور پر قرار دے دی ہے کہ 26 اپریل جس دن توہین عدالت کیس کا فیصلہ سامنے آیا تھا اس کے بعد سے وزیر اعظم کے عہدے کا منصب ہی خالی ہے. یوسف رضا گیلانی اس عہدے کے اہل نہیں رہے. صدر پر لازم ہے کہ وہ نئے وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے اقدامات کریں اور الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر یوسف رضا گیلانی کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کرے اور اس نااہلی کے بعد وہ ممبر پارلیمنٹ یعنی رکن قومی اسمبلی بھی نہیں رہے، کیونکہ کوئی بھی سزا یافتہ شخص ممبر پارلیمنٹ یا رکن قومی اسمبلی نہیں رہ سکتا اور نہ ہی کوئی سزا یافتہ شخص کسی سرکاری عہدے پر فائز رہ سکتا ہے. اس طرح وزیر اعظم جو کہ نااہل ہیں اور سزا یافتہ ہیں وہ وزارت عظمیٰ کے منصب کے لیے نااہل قرار دے دی گئے ہیں. سپریم کورٹ کی جانب سے قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ یوسف رضا گیلانی نے 26 اپریل کے بعد سے اب تک ملک کے آئین کے ساتھ مذاق کیا ہے اور نااہلی کے بعد وزیر اعظم کے تمام فیصلے بھی غیر فعال ہو گئے ہیں. قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے جتنے بھی دورے کیے اس کے بعد اور جو ان پہ اخراجات آئے ان کی بھی پوچھ گچھ یوسف رضا گیلانی سے ہونی چاہیے اور ان کے تمام تر فیصلوں کو کالا دم قرار دیا گیا ہے. اور یہ بھی کہنا ہے قانونی ماہرین کا کہ 26 اپریل کے بعد سے اب تک جن لوگوں نے یوسف رضا گیلانی کی نااہلی کو تسلیم نہیں کیا اور انہیں بدستور وزیر اعظم کہتے رہے انہیں قوم سے معافی مانگنی چاہیے. آپ کو بتاتے چلیں کہ اسپیکر کی رولنگ کو پارلیمانی تحفظ حاصل نہیں ہے، یہ کہنا ہے چیف جسٹس کا. اور یہ فیصلہ چیف جسٹس نے خود تحریر کیا، 4 صفحات پر مشتمل ہے یہ فیصلہ اور مختصر فیصلہ سنایا گیا ہے. آج تفصیلی فیصلہ کچھ دنوں کے بعد سپریم کورٹ کی جانب سے جاری کیا جائے گا اور اسپیکر رولنگ کیس کا فیصلہ چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری نے خود تحریر کیا ہے اور فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے وزیر اعظم گیلانی کو وزارت عظمیٰ کے منصب کے لیے نااہل قرار دے دیا ہے اور 26 اپریل سے وزیر اعظم گیلانی یعنی یوسف رضا گیلانی نااہل تھے اور سپریم کورٹ نے عدالت عظمیٰ کے منصب کو خالی قرار دیا ہے. اس فیصلے کے آنے کے بعد وکلاء نے جو کہ سپریم کورٹ کے باہر ایک بڑی تعداد میں موجود تھے اس فیصلے کو بہت سراہا اور گو گیلانی گو کے نعرے لگائے. چیف جسٹس کا کہنا ہے نے صدر کو یہ بھی ہدایت کی ہے کہ وہ فی الفور آئینی طور پر نیا وزیر اعظم منتخب کریں. یہ ہدایت کی ہے سپریم کورٹ نے اور یہ بھی کہنا ہے سپریم کورٹ کا کہ یوسف رضا گیلانی پارلیمنٹ اور قومی اسمبلی کے رکن نہیں رہے.